Hi, beautiful people. Thank you to each and everyone here that is listening to us live and those who listen to it later on in the YouTube. Thank you so much. The entire team, the visible, of course, you can see me, Priyadi, and Tara here, but there is so many invisible hands behind us that is keeping us afloat. And behind all of that, on behalf of all of that, I and Didi and Tara welcome you all to today's Tribe Meetup. And today we are going to talk on something जो सब लोग थोड़ा प्रिपरेशन मोड में स्टार्ट हो चुके हो. दैट इज दिवाली आ रही है. देन क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा, सब पार्टी 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 का माहौल रहेगा, है ना. सो वी आर ऑल हेडिंग टुवर्ड्स फेस्टिविटीज, ईयर एंड फेस्टिविटीज, है ना. तो सभी को ये है कि अभी स्वीट्स आएंगे घर पे. यू मेक स्वीट्स ऑल्सो. एंड देन फेस्टिव फूड्स भी होता है, स्पेशल फेस्टिव फूड्स बनते हैं, लेना देना, गेस्ट्स आएंगे, गेस्ट आप किसी के घर जाओगे. ऑल दीज आर एक्चुअली काइंड ऑफ रनिंग इन योर माइंड, राइट, कि क्या गिफ्ट करे, क्या नहीं गिफ्ट करे, है ना. So that is what we Didi got this brainwave of an idea that we should help people get ready for their festive celebration. So who here is excited for Diwali? पूनम जी. परदेश में हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना अलग ही बात है. मैं बोलती हूँ, माय गॉड, इट इज द मोस्ट फन थिंग एवर. मोनिशा जी, यस. करवा चौथ भी है ना अभी, है ना Yeah, दीदी? before हाँ. before that, yeah. हाँ, Before करवा चौथ. Diwali, there's Karwa Chauth, and then हाँ. lot of festivals are there actually. Lots of festival lined up, right? So अगर किसी को कुछ डाउट्स है पहले ही इसके बारे में, कैन यू डू यू गाइस वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन कि हम हमारे फ्लो में, वी कैन स्पीक. वी हैव आइडेंटिफाइड फ्यू पॉइंटर्स दैट वी वुड लाइक टू गिव यू. बट कुछ आपकी तरफ से कुछ कंसर्न्स है तो इफ यू वांट टू से प्लीज गो अहेड एंड से. या फिर सौम्या, आई हैव अ लिटिल डाउट. हम्म. आपकी पोस्ट में एक था कि डोंट हैव स्नैक्स इन बिटवीन योर मील्स. सो बट वही वही मेरा वही सेम डाउट है लास्ट टाइम वाला कि वी यूज्ड टू से टू आवर पेशेंट्स की टू हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स सो दैट कि जो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स हैं वो ना आए उतने ज्यादा, और छोटे छोटे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहें. बट आपकी वाली पोस्ट में था कि डोंट टेक स्नैक्स इन बिटवीन. सो यू कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट? हाँ. So we need to see this from the physiological mindset. जो हम snacks allow करते हैं ना, वो किस category लोग के लिए? It is for mainly for people who are diabetic or pre-diabetic, where you need to frequently feed them so that the insulin doesn't spike, है ना? But if a person is hata kata, he's normal, he's well, his blood parameters is okay, his metabolism is okay, he's doing well in his life, he's active, he's everything. तो उनके लिए बार बार खाना क्यों? They can have 3 meals because their metabolism will support. In fact, we were not supposed to munch. आप evolution पढ़ोगे, if you study the whole evolution, जैसे हम बड़े अभी हम apes, like all the chain that we have passed and came here. No mammal, except for the ones that walk on 4 legs, they are not chewing. They are not munching so much, है ना. हम अगर हम चूइंग पीपल काइंड ऑफ होते तो हम अभी भी मंकी तक ही स्टॉप हो गए होते हैं ना. वी वुड हैव स्टॉप्ड एट द एवोल्यूशन ऑफ मंकी ओनली. बट आफ्टर मंकी वी हैव गोरिल्लाज एंड वी हैव एप्स एंड देन वी हैव अस. तो इफ यू सी गोरिल्लाज एंड ऑल दैट, दे आर नॉट मंचिंग ऑल द टाइम. So this snacking habit has been stopped at monkey level only. We have evolved through it, so you don't need to munch all the time. Besides, you have a good cognition power now. उन ठीक है, एनिमल्स हैं वो च्यू करते रहते, बट उनका कॉग्निशन नहीं है ना, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं है ना उतना ज्यादा जितना हमारा है. सो वी डोंट नीड टू eat snack all the time. If you're going to eat snack all the time, Indrajit, you also know na, we have two hormones, ghrelin and leptin. So your leptin hormone will not be functioning because it doesn't know when to tell you to stop. Am I right? The ghrelin is constantly on because you're constantly chewing. So the leptin hormone will not send the signal to the brain to say, hey, stop, iska pet bhar chuka hai. That is why many people suffer this particular thing called empty stomach hunger. उन्होंने कुछ
कुछ नहीं खाया ना, कुछ सपोज दे आर ट्रैवलिंग एंड ऑल एंड दे डोंट ईट, एक्चुअली वो पूरा है, बट बिकॉज द स्टमक इज एम्प्टी दे feel hunger and they eat. This excessive eating is what causing obesity, है ना. You also know कि insulin constantly blood में है ना. That means it gives rise to the deposition of fat, right? Adipose tissue ज़्यादा बनते हैं because insulin ज़्यादा है, means glucose भरपूर है, तो there is no need to break down fat, because fat तभी burn होता है जब glucose down होता है, जब insulin down होती है. ग्लूकोज डाउन हो गया तो इंसुलिन डाउन हो गई, तभी जाके फैट बर्न होता है ना. दैट इज वाई वी आस्क देम टू डू फास्टिंग. फास्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज ड्रॉप होता है, इंसुलिन ड्रॉप होती है, दैट्स व्हेन द फैट स्टार्ट्स बर्निंग. Correct. So this, yes, for people who are diabetic, that is extreme diabetic ना, प्री डायबिटिक को भी हम यहाँ पे हमारे यहाँ तो 3 वक्त का ही मील होता है, and they are doing fine. It is people who are like on insulin shots, है ना, like they are taking insulin injection Oh, and all. type 1 diabetics is completely different. But हाँ. the thing is कि if there is any healthy individual, अगर हमें उसे क्योंकि as per ICMR किसी healthy individual को we need to give at least 23-20 calories, like approx 2400 calories. So अगर हम single meal में 800 calories देंगे तो that would be so much I guess. तो वो तो काफी ज्यादा है एक single meal के लिए 800 calories. तो मतलब what should be the ideal distribution in that case? That's where we differ, Inderjit. Here at Brain to Body, we don't do calorie. That is something that I told last time also, that we are powering through mind. ठीक है, हम भरपूर खाना देते हैं. We have not introduced portion control to any of our clients. We have not told them to eat 1 chapati, 2 chapati. वो उन्होंने खुद decide किया. We have said you should have this, you should have this, you should have, you should have. वो अपने भूख के हिसाब से, है ना. यस, आईसीएमआर कैसे बोलता है, हाँ जनरलाइज स्टेटमेंट देता है, बट हर इंडिविजुअल का ना हंगर का क्वांटिटी लेवल होता है. आज सपोज मुझको 1 रोटी खाने का हंगर है, कल मुझको 3 रोटी खाने का हंगर हो सकती है, बट इफ यू स्टिपुलेट कि 1 ही रोटी खाना है, दैट बंदा विल नॉट ईट प्रॉपर्ली. अगर आप 3 रोटी का स्टिपुलेशन किया है तो उसको कभी कभी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आई एम फीलिंग हंग्री फॉर. सो थ्योरी एक तरफ होती है, थ्योरी इज गुड, यस वी शुड हैव दैट नॉलेज कि इतना कैलोरीज देना होता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी दिस डजंट वर्क. दैट इज व्हाट वी हैव सीन इन आवर क्लाइंट्स, दैट इफ वी आर, बहुत सारे लोग हैं ना इंद्रजीत, व्हाट वी यूज्ड टू डू दिस, वी हैव डन दिस कैलोरी डेफिशिट काइंड ऑफ अ थिंग इनिशियल में. People started saying, oh, I feel hungry, I'm not satiated and all that, because they were not understanding their hunger cues. There are a lot of hunger cues coming. That is where we are missing. We need to teach them to learn to communicate with their body. अगर कम्युनिकेशन समझ में आता है तभी वो बंदे को पता, यू कांट बी देयर विद दैट पर्सन 24/7. आपने 5 मील दे दिए हैं, सपोज 8 बजे आपका खाना 7 o'clock खत्म हो गया, बट उसने कुछ 7 to 8 बहुत ही इंटेंस कुछ स्ट्रेस में चला गया, एड्रेनलिन में चला गया था, क्योंकि कुछ हुआ उसके लाइफ में, उसको 9 बजे अभी भूख लग गई है, बट बिकॉज यू सेड 7 बजे इज लास्ट, तो वो बच्चा वो पर्सन 9 o'clock कुछ नहीं खाएगा ना, बट उसका हंगर सिग्नल तो आ चुका है. इफ ही डजंट एड्रेस दैट, देन द हार्मोन इज इन इम्बैलेंस, है ना. सो व्हाट वी डू हियर एट ब्रेन टू बॉडी इज we are aware of the calories that we need to give. We educate them in a very different way. We balance their plates, we tell them what needs to be there on their plate, but they will always eat as per their hunger. जितना उनको भूख लग रही है उसके हिसाब से ही खाएंगे, because more than the calories, it's addressing those hunger, the hormone signals that is happening inside body, because at the end of the day the hormones are running the show, है ना. If we Yeah. go, I have one more doubt. One more doubt. So मैं actually patient. I used to see patients. वो उनका ऐसा रहता है कि सुबह एक मील लिया and they said कि we उसके बाद we used to consume directly in the night. उसके बाद बीच में वो कोई मील नहीं लेते. तो is it a good way? patient है ना. If he's a patient, then of course you have to identify whether it's a patient or a normal person. If it's a patient, then of course you have to give, right? If it's a client or normal person, then you have to identify that वो patient है. Patient has to be taken care of in that manner. You cannot you cannot give something to a patient that patient cannot be generalized for the first matter, right? Yeah, exactly. If it is a general individual, healthy individual, then what should be the मतलब, is it fine to have meals like in the morning and directly in the night?
No, we are giving lunches also. See, Indrajit, if you go back to the evolution time, उस टाइम पे जब हम लोग जब खाना का, तब आपने कितना सुना था? हम अभी तुम कितने 28 to 30 के इयर्स ऑफ एज में हो, ठीक है? बिफोर दैट जब हम लोग छोटे थे, तब हम लोगों ने कभी सुना था कि किसी को डायबिटीज हो रही है या किसी को ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हमारे दादा वगैरह That's भी थे, है ना, तब भी नहीं सुना था हम लोगों ने. सो दे दोज पीपल दे डिड नॉट हैव एनी ऑप्शन टू स्नैक. They were working out. exactly. They did not have any We have option to so much snack, to eat actually, right, these days. right? So the thing is, just look back, go back to that time when people were not having that thing, and they were not, they were famines and all. So our body is actually manured in that manner that whenever you are having that kind of extra calories, अगर हैं आपके body में आ रही हैं, so those are converted into fats. सो आपके बॉडी में अगर आप फ्रीक्वेंट स्नैकिंग करोगे तो फैट बर्निंग वाली कैपेबिलिटी जो है ना, वो आपकी कम होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि यू काइंड ऑफ जेनरेट फॉल्स हंगर सिग्नल्स. आपको लगेगा यू एक्चुअली वी ऑल, हम सब इसी तरह से बने हुए हैं ना कि हम लोग टाइम टेबल को बहुत ज्यादा मैटर करते हैं. घड़ी देखकर तो हम लोग खाना खाते हैं कि 11 बजे तुम्हारा स्नैक का टाइम हो गया, 5 बजे तुम्हारा दोबारा स्नैक का टाइम हो गया. तो व्हेन विल यू गिव सम रेस्ट टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम? योर डाइजेस्टिव सिस्टम नीड सम काइंड ऑफ रेस्ट ऑल्सो ना, कि आपका जो खाना एसिमिलेट करेगा, उसको हजम करेगा, उसको बाहर निकालेगा, उसको समय भी तो चाहिए आपका. आप बार बार स्नैकिंग करके एक तो आप अपने बॉडी को रॉन्ग सिग्नल दे रहे हो कि भूख नहीं लगी है, हो सकता है इट्स अ थर्स्ट, बट द पर्सन विल थिंक इट्स अ हंगर. So here at Brain to Body, what we do is we tell them that you have to identify whether it is hunger or thirst or just it is an emotional burst that you're having, and for that you are wanting to have something to eat. Getting my point? Yeah, I agree. Inderjit. Just a last doubt. So Mhm. much, so sorry. No, no, अरे that's But नहीं, okay. please, You're please carry you're on. asking valid questions, Yeah. actually. actually, these days, one meal a day concept is also getting established. So is it like a good one, good thing, or what? Um, Because okay. कि अगर वह one meal at a day ले रहे हैं तो calorie deficit तो obviously the Hmm. individual must be consuming less than 700 or 600 calories. So in that case there will be a lot of vitamin or micronutrient or macronutrient deficiencies will be there. So what would be the ideal approach in that case? Okay. Uh, Didi also will add to this. I wanted to add before you this question. Indrajit, we saw something very beautiful happen to our clients without doing this calorie deficit. So in the first 2 weeks, we actually don't do much changes. Okay, we don't do any changes, to be honest. We don't do any changes. We just make them do mindful eating. Okay, and we are getting people reporting 1 kilo drop, 2 kilo drop without changing anything. They are eating it. In Agree. fact, we asked them to eat what they have left eating. है ना, लाइक कोई कोई ने स्वीट छोड़ा है. मोनिशा जी कैन आई थिंक यहाँ पे वॉच कर सकती है. वी हैव आस्क्ड देम टू ब्रिंग बैक व्हाट दे हैव लेफ्ट. Despite eating that also, there is a drop of 1 or 2 kilos. So how can we explain this? That means your body has that capability. आपकी बॉडी को उतनी कैपेसिटी है कि वो छोड़ सकता है अपने आप से. ये एक बात आई वांटेड टू ऐड कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है बिहेवियरल साइंस बोल के, बिहेवियरल थेरेपी बोल के. बिहेवियरल साइंस ही है ना दीदी, बिहेवियरल साइंस Behavioral है. science. हाँ, Yes, ये behavioral पार्ट science. मिसिंग है न्यूट्रिशन में. इसको एक्चुअली इंटीग्रेट करना चाहिए था. न्यूट्रिशन, जो कोई भी न्यूट्रिशन पढ़ रहा है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि Body को बिहेवियर, समझना खुद में बहुत important. Yeah, यस, exactly. वो पार्ट मिसिंग है. अगर वो इंक्लूड हो जाए ना, तब जाके कैलोरीज पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आपका बॉडी आपसे ज्यादा होशियार है. यू नो, इट इज मच मोर केपेबल. योर माइंड एंड योर बॉडी कैन डू मैड मिरेकल लाइक एनीथिंग, है ना. कभी फैट ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली, पीपल हु आर थिन लाइक मी, when I went to colder region, automatically I started bulking up. Here I'm eating 2500 calories at times, but still I'm not able to put on. Why? The temperature is temperate wherever I am. So your body is brilliant. उसको support करना है by understanding it. तो ये मेरे तरफ से था. One time meal from according to me, जो जितना मैंने पढ़ा है, it is only for people
who have started their spiritual journey and who have the knowledge to access energy from nature, from higher power, only then they should do this one time meal. That is my answer, because you need energy, you need power to survive in this societal world. Yeah. One meal pay, you can't survive like that. It is torture to the your whole system, is Of my course, that is take. not paying gratitude to your body, ना. Your body is meant for having macronutrients चाहिए, उसको micronutrients चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, you know. Everything has to be given in balance. So you are not overstuffing it as well as you are not understuffing it. Like you are not under providing it. You are a provider. You have to identify कि आपको भूख कब लगी, क्या वो प्यास है. अगर वो प्यास है तो वो पानी से बुझ जाएगा. हम लोग क्या बोलते हैं अपने सारे क्लाइंट्स को कि अगर आपको भूख लगी है ना, तो आपको हंगर का सिग्नल आ रहा है, यू जस्ट फर्स्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना. लेट अस आइडेंटिफाई वेदर इट इज हंगर और प्यास. आप ये देखो कि पहले के जमाने में क्या होता था ना, इतना ज्यादा हम लोग जब जंगल में रहते थे, या यू एक्चुअली एवरीथिंग इज सी इंद्रजीत इज कनेक्टेड विद एवोल्यूशन. Evolution. एवोल्यूशन के हिसाब से हमारी सारी की सारी, इवन इफ इट इज अ कैंसर सॉर्ट ऑफ थिंग ऑल्सो, एवोल्यूशन के साथ साथ हम लोगों को जितनी चीजें मिली हैं उसमें से कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन लोगों को सफर करना पड़ रहा है उसके लिए, जो जीन जेनेटिक म्यूटेशंस हो रही हैं उनके लिए सफर करना पड़ रहा है लोगों को. आई एग्री विद दैट. बट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम दैट जोन कि आप एवोल्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, एवोल्यूशनरी साइंस आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि योर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दैट मच ऑफ कैलोरी, है ना. अभी हमारे मतलब पानी के ऊपर भी लोग फास्टिंग करते हैं, है ना. लेकिन फिर भी तो तुम कह रहे हो ना कि एक दिन में एक बार खाना, वन मील इज नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली. इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. हाँ, जो इंटरमीडिएंट फास्टिंग करते हैं, जो वो 2 बार खाना खाते हैं, वो ठीक है, 2 बार आप खा सकते हो. आप ब्रेकफास्ट आपने हल्का कर लिया, आप 2 बार खाना खा लो, दैट विल गिव यू इनफ न्यूट्रिएंट्स. बट अगेन दैट शुड बी बैलेंस्ड. ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपका बैलेंसिंग ना हो. बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वन मील इज नेवर, वी डो नॉट रिकमेंड. हाँ, एक दिन के लिए आपने फास्ट करा, एकादशी का फास्ट करा, आज एकादशी है शायद, तो एकादशी का आपने फास्ट करा, एक बार खाना खा रहे हो, ठीक है, चलेगा. बट कल आपका बॉडी जो है वो वेल इक्विप्ड होना चाहिए कि आपका एक दिन का फास्ट वो सस्टेन कर पाए, राइट. तो हमने जब नवरात्रि का फास्ट करवाया, हमने उनको 3 दिन ऑलमोस्ट लिक्विड पे रखा. उसके बाद हमने धीरे धीरे सेमी सॉलिड करना शुरू किया था. तो उसमें नेवर, लाइक, नो वन डिड फील एनी काइंड ऑफ हंगर और एनी काइंड ऑफ दैट थिंग, एंड दे वर नॉट अंडर नरिश्ड because they were borrowing that nourishment from the other sources also, ना. They were meditating, they were clearing the blockages, हवा ले रहे थे, पानी ले रहे थे, सनलाइट ले रहे थे, उसके साथ उन्होंने किया. लेकिन वो 3 दिन का वो करने से पहले उनको पहले नरिश किया गया, उनकी बॉडी को वेल इक्विप किया गया कि आप इस तरह का चीज को कर सकोगे. So if your body is well, if you are a healthy individual and you are having that, then okay. अदरवाइज तो बॉडी अपने आप से ही आपकी क्लीनिंग नहीं करती ना, अगर आपको जरूरत पड़ती है. आप जब कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ तो आप कुछ खा सकते हो, इंजेक्शन तो कुछ होता नहीं है ना उस टाइम पे. यू आर हैविंग लूज मोशन जस्ट सपोज, सो आप इंजेस्ट तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, अदर देन ORS यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग. सो दैट टाइम ऑल्सो योर बॉडी सस्टेनिंग दैट. यू आर गिविंग इट इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो रहा है, तो बॉडी सस्टेन कर रही है ना उसको. दैट इज वन. अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो बॉडी इस तरह की चीज बनाती ही नहीं. हमारी बॉडी जो है ना, दुनिया की बेस्ट मशीन है, बेस्ट बेस्ट मशीन है ना. तो वो अपने आप को इक्विप करना जानती है. बट स्टिल अगर आपकी हेल्दी बॉडी है, तब आप अगर एक बार एक दिन में खाना खा रहे हो, इट्स ओके. 3 दिन तक भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ये तो है ही बिल्कुल नहीं. until and unless you are very that kind of individual, वो हायर पावर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है. जैसे नरेंद्र मोदी भी जो बोलते हैं कि एक बार खाना खाता हूँ, या फिर बहुत कम सोता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ, है ना. जग्गी वासुदेव जी बोलते हैं, सदगुरु बोलते हैं, वो एक टाइम खाना खाता है, तो वो बहुत हाई लेवल के इंडिविजुअल है. बहुत अच्छे से उनका वो सुपर कनेक्शन है उनका अपने सुपर कॉन्शियसनेस के साथ. बट फॉर द पीपल लाइक अस, हमारे लिए थोड़ा सा एक बार खाना खाना, तो अगर आप हेल्दी हो तो एक दिन करो, 2 दिन करो, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर सकते हम लोग, है ना. यहाँ ठीक है. पे Thank कई you so सारे much, Dee. थैंक यहाँ यू, पे थैंक कई यू. सारे लोग इंद्रजीत जी स्टार्टिंग जब आते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं, लाइक 5 टाइम्स खा रहे हैं, लाइक स्नैकिंग कर रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं ना. We used भाई to prescribe. We used to भी, consult कि have at least 5 meals a day. हाँ, Small meals, 5 meals a day. correct. They come like that, they definitely come like that. There are so many people who have come, but at the end of the term, once they understand their body, their mechanism, their past, their present body, everything, means they start understanding all this now, you won't believe, almost everybody comes at 2 meals per day.
अरे इकिगाई में भी देखो ना, सेंटेनेरियंस जो है उन्होंने बोला हुआ है कि वी आर, दे आर नॉट मंचिंग ऑन एनीथिंग, दे आर एक्चुअली हैविंग 2 और मैक्सिमम 3 meals. द मैक्सिमम। सेंटेनियंस हैव टोल्ड अस ना, आप ब्लू जोन सारी मूवी में देखो, सब ये बोलते हैं कि दिस थिंग व्हाट वी डिड इज टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर एज, वी नेवर मंच, वी वर नॉट मंचिंग ओनली. हम लोगों को जो मंचिंग देखो, मंचिंग करने की आदत अगर मैं बताती हूँ कहाँ से आया है. जो एनिमल्स करते हैं ना, वो मंचिंग नहीं करते, वो र्यूमिनेशन करते हैं. वेन एवर द एनिमल तक जिनका गट लंबा होता है ना, जैसे कि हमारे जो कैटल्स होते हैं या फिर ये सब होते हैं ना, इनका गट बहुत लंबा होता है. हमारा ह्यूमन का गट इतना लंबा नहीं होता जितना उनका गट होता है. तो वो पहले एक बार क्या करते हैं, मंकीज को देखा होगा ना आपने, मंकीज को या काउस को, वो एक बार खाना खा लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद वो उसको र्यूमिनेट करते हैं, वो वापस से अपने मुंह में लेकर आते हैं खाने को, वापस से मंचिंग करते हैं उसको. उसी को देखते देखते ह्यूमन लोगों को लगता है कि हम लोग, क्योंकि वो वाला कैरेक्टर्स तो हमारे अंदर भी, पहले हमारा गट भी लंबा होता था ना, शायद उसके कारण वहां से हो सकता आया हो कि हम लोगों को मंचिंग की आदत पड़ गई हो, कि कुछ हम लोगों ने इमैस्कुलेट करना है, कुछ चबाना है करके ऐसा. बट अदर देन दैट आवर बॉडी डज नॉट रिक्वायर दैट. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक बार में खाना अच्छे से हजम कर सकता है. हमारे जो 32 दांत हैं वो अच्छे से हजम कर सकते हैं, अनलाइक दैट इन प्राइमेट्स एंड ऑल. So maybe from there, just I got this idea just now. Maybe from there we got this आदत of munching, कि वो लोग ruminate करते हैं, जो बंदर भी होते हैं वो सब ruminate करते हैं, या काउस वगैरह ruminate करते हैं ना, उस तरह से. So maybe otherwise हमारे बॉडी को जरूरत नहीं होती स्नैकिंग की. नहीं दीदी, ये 3 वक्त का ही था. बीच हम्म. में क्या हुआ, ये जो न्यूट्रिशन का बूम हुआ ना, हम्म. न्यूट्रिशनिस्ट आने लग गए, हम्म. डाइटिशियंस आने लग गए ना, हम्म. they like how right now veganism is in the trend, हम्म. plant-based milk is in the trend. हम्म. वो जाके ये वाला ट्रेंड भी आ गया कि 5 बार, आई हैव रेड दिस इन रुजुता हाँ, वो 5 बार दिवेकर्स. तो आया है, डेफिनेटली वो 5 बार तो आया है, हाँ. बट ह्यूमन हम लोगों को क्यों आदत पड़ती है ना, हमें किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला हो चाहे नहीं बोला हो, फिर भी वी आर इन हैबिट ऑफ मंचिंग ना, यहाँ पर गए मंच कर लिया, वहां पर गए मंच कर लिया, मुंह में ये डाल लिया. वो कहाँ से आया मैं बोल रही हूँ, हो सकता है वो वहां से आया हो, बिकॉज वी हैव हाँ. ऑल गॉट एनिमल इंस्टिंक्ट ना. तो वो र्यूमिनेटिंग एनिमल से हो सकता है हम लोगों के आया हो, कि हम लोग हाँ, वो उस तो कारण है. से हम चबाना शुरू कर देते हैं ना, इस तरह से वैसा. अदरवाइज बॉडी को ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती कि भाई हम लोग बार बार करके खाएं पिए ऐसे करके, हमने है ना. तो थ्रू आउट अपने डिग्रीज में यही पढ़ा है एक्चुअली ना, कि हाँ, गिव मैं. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स टू योर पेशेंट, हम्म. गिव दिस मच कैलोरीज, गिव दिस गिव दैट. कहीं पे भी ये नहीं कहा कि कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाओ, बस उनको ये है इधर कि. इधर जो और हम नहीं. आई लोग. हैव वन मोर डाउट, हम्म. वन मोर डाउट, कि 2007 में, जैसे आपने कहा कि 2007 में ये वाली बात कितनी आ रही थी कि हम लोगों को देसी घी नहीं खाना चाहिए, आ रही थी ना. हर हाँ जगह ये हाँ बोला जा रहा था. 2007 में हम लोगों ने भी बिल्कुल ऑफ कर दिया था. मेरे हस्बैंड का ट्राइग्लिसराइड ज्यादा आया था, तो उन्होंने बिल्कुल देसी घी ऑफ कर दिया था, जीरो ऑयल पे आ गए थे, और स्टैटिन्स देना शुरू कर दिया था लोगों को. राइट. अब क्या आया है, अब नई थ्योरी के हिसाब से दे आर नॉट गिविंग स्टैटिन्स. थोड़ा बहुत अगर टीजी आपका ज्यादा भी हो या कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत हाई हो, तो इट इज ओके, है ना, आप अपने आप कम कर सकते हो उसको. लेकिन दे आर नॉट, आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता बहुत जल्दी स्टैटिन. पहले क्या हो रहा था, बहुत जल्दी स्टैटिन दे दिया जाता था. तो स्टडीज अभी भी आ रही हैं, अभी भी चल रही हैं. यू नेवर नो, कल को तुम्हारी बुक में ये बताया जाए कि भाई 5 बार नहीं 3 बार खाओ. हाँ. हाँ, राइट. ट्रू, दैट्स ट्रू. तो No, टाइम, it's हाँ टाइम pivoting. इज वेरी एक्सपेंसिव. इट इज हाँ, पिवटिंग अगेन, इट इज पिवटिंग अगेन. बहुत सारे इट्स लोग या अभी वापस 3 मील पे आ रहे हैं. लाइक साइकिल है ये. साइकिल. पुराना चीज नया होता है, नया चीज पुराना होता है. इट इज गोइंग टू. प्लीज, बट आप या इंद्रजीत और एक क्वेश्चन पूछ रहे थे. हाँ, तो मेरा डाउट ये था, वन लास्ट डाउट, कि आपने कहा 2 meals a day, सो व्हाट शुड बी द टाइमिंग फॉर दैट 2 meals? हंगर पे. हमारा ये अब तेरी मुझे है. रात को हम किसी 11 को बजे बोल दो भूख अब. लगेगी, नहीं. हाँ. मुझे रात को 11 बजे भूख लगेगी, तो कैन आई हैव दैट? नो नो, नहीं भूख लगेगी ना. आपकी सोने पे डिपेंड होगा फिर एक्चुअली उसमें. ऐसा ही है, मतलब मोस्टली पेशेंट्स लाइक दैट, कि मुझे तो पूरा दिन भूख नहीं लगती, मैं तो रात को जब बैठ सोने जाता हूँ तो मुझे तब भूख लगती है. बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं ऐसे वाली. तो उनका आपको स्ट्रेस हैंडल करवाना पड़ेगा पहले तो. स्ट्रेस इज द मेजर ब्लॉकर फॉर एपेटाइट. उनको रात को क्यों भूख लगती है इंद्रजीत जी? बिकॉज दे आर डन फॉर द डे ना. तब जाके वो रिलैक्स होते हैं, तब जाके उनको खबर आती है अच्छा मेरा पेट कुछ सिग्नल भेज रहा है. For the rest of the day they are in their head only. They are in the environment. They are thinking, oh मुझको ये सॉल्व करना है, मेरे को ये मीटिंग अटेंड करना है, मेरे को ये करना है, they are so absorbed in that. You need to make them be in the present moment. You need to make them calm down, de-stress, be here. तब जाके उनको सिग्नल की आना जाना पता होता है. वही सेम बंदे जो बोलते हैं आपको रात के 12 बजे भूख लगती, छुट्टी के दिन उनको 3 भूख नहीं लगती है.
सैटरडे संडे ठीक से खाते हैं ना उस दिन. So So how is that? How is that? Why it happens on Saturday and Sunday, not rest of the weekdays? It's the stress. Stress is the major appetite killer. So we need to work on stress blockers. Inderjit, as a dietitians, we are not solving malnutrition or undernutrition or overnutrition. What we are solving is stress. If we can solve yeah, we stress are for someone, you have won the game. आप उनका फैट लॉस भी होगा, उनका इंच लॉस भी होगा, उनका न्यूट्रिएंट भी रिच होगा, उनका गट हेल्थ भी अच्छा होगा, उनका सभी अच्छा होगा. We need to actually fight stress. stress is everywhere. Actually, stress in the core. So if we sort out that thing, तो You it will don't. be इसको so ऐसा much होता है healthier. कि तुमने इंदर कभी सुना है ना, लेडीज जनरली ऐसे बोलती हैं कि सारे दिन तो मेरे पैर दुखते नहीं है, रात को जब मैं जाके लेटती हूँ तब मेरे पैर दर्द होते हैं. हाँ ट्रू, दैट्स ट्रू. हाँ बिल्कुल ठीक कह राइट. रहे हो दी. तो इट्स लाइक दैट कि सारा दिन काम काम में, स्ट्रेस स्ट्रेस में पता नहीं चलता. वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज वी आर नॉट गिविंग टाइम टू Signals. अवरसेल्फ ना, ब्रीदिंग ही नहीं कर रहे हैं यार हम लोग कॉन्शियसली. बट देन रात को जब हम रिलैक्स होने जाते हैं तब हमें रियलाइजेशन होता है कि यार यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो. इट्स बिकॉज ऑफ दैट. And आपका I जो have पेट so है much, ना, दैट इज ऑल्सो so much मसल ना. experience. हाँ एक्चुअली I have so much of experience ना दी, क्योंकि डे टू डे बेसिस में बहुत सारी आई नो ओपीडीज आती हैं. आई तो नो. मतलब पेशेंट्स इतने यंग वाले पेशेंट, मतलब क्लाइंट्स, सॉरी मैं यहाँ पे क्योंकि मैं हॉस्पिटल सेटअप में हॉस्पिटल हूँ, सेटअप में है ना तो इसलिए. जो हेल्दी इंडिविजुअल्स है, यूज टू कॉल देम पेशेंट्स ओनली. बट हाँ, जो भी क्लाइंट्स आते, मतलब इवन जो 30 years की इतनी यंग वाली लेडीज आती है ना, दे यूज टू कंप्लेन कि उन रात को नींद ही नहीं आती है. And I got so much surprised कि they just 30 and they feel they are deprived of sleep, मतलब at the such young age. तो वो अभी से ही, और कितनी इसी तरह की बहुत सारी और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, इतनी यंग एज में पेशेंट्स को आने लगी हैं. तो इट्स रियली मतलब मैटर ऑफ स्ट्रेस एंड मैटर ऑफ कंसर्न कि उन्हें किस तरह से गाइड किया जाए. तो आई ऑलवेज ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि उनको या ठीक. यू आर हाँ. डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एक्चुअली, है ना, कि इतना ज्यादा कंसर्न्ड आप अपने क्लाइंट्स के और अपने पेशेंट्स के लिए, वो बहुत बहुत बड़ी बात है यार. बिकॉज सी दैट इज द जनरेशन विच आर गिविंग ऑल द थिंग. उनको उनको ये स्ट्रेस है कि मैंने पढ़ाई कर ली. पढ़ाई हम लोगों को जो कॉलेज में करवाया जाता है, प्रैक्टिकल में आके कितनी काम आती है इंदर, वो मुझे ये बताओ. जब तुम हम्म. काम करने लगते हो, इंडस्ट्री में जाते हो, तब यू कम टू नो कि व्हाट एक्चुअली वेयर यू आर एक्चुअली. आजकल ये बीच एक्चुअली बीच के जो स्किल डेवलपमेंट करने वाले जो है वो क्यों है, क्योंकि कॉलेज में हम लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई, मैंने इंजीनियरिंग करी है, कॉलेज में जो पढ़ाया गया था उसमें से कुछ भी नहीं वो आता आप जब हार्डली इंडस्ट्री में किसी जाओ. काम, कुछ भी एग्जैक्टली उसमें से कुछ भी काम नहीं, का तो उन ज्यादा नहीं है. बच्चों को देखो जो अभी अभी कोर्सेज करके आए हुए हैं, जिनको जॉब चाहिए, उनको कुछ भी नहीं आता. जब वो जाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, उनको कुछ भी नहीं आता. तो स्ट्रेस तो उन्हीं को होगा ना, और किसको होगा स्ट्रेस, हम्म. है ना. तो इसी स्ट्रेस के एग्जैक्टली. कारण लो एनर्जी हुई उनकी. लो एनर्जी में वो जाके बिंजिंग करेंगे, रातों को नींद नहीं आएगी उनको. फिर कोई ना कोई स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हो जाएगा, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाएगा. राइट. तो वी आर ऑल वेरी ससेप्टिव टू द स्ट्रेस, एंड उसके कारण ही हमारे इस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं. हमारे पास तो मैजिक रॉक है, तो हमें तो मुझे तो पकड़ते साथ ही नींद आता. Good job. You need to modify it in some way and make them do it. That's all you have to हाँ, do. ये करो You तुम. can't tell them एक्चुअली to do magic rock, but हम्म. maybe you can make them do some other activity and ask them to sleep. That's the हाँ, या solution for that. Yeah. मे बी यू कैन टेक I दैट used विद to I बोथ द used टाइम. to prescribe ashwagandha, and sometimes I used to prescribe melatonin. देखो, Can't do anything. जब वो बंदा खुद लो वाइब्रेशन में है ना, आप कितना भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला फूड दे दो, वो भी मीडियम फ्रीक्वेंसी पे आके रुक जाता है. रुक जाएगा. वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रहा है. इनको खुद को अपलिफ्ट करनी है, पावर उनमें ही है. प्लांट्स कैन ओनली बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर शॉर्ट टर्म, है ना. प्लांट हो, एनिमल हो, जो भी है, इट इज शॉर्ट टर्म. सिम्टोमेटिक हो गया ना, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया वो. आप रूट कॉज पे जाओ, उनको make them see it for themselves, that they can fix themselves. The source is within. So that is where we come in, I think, Indrajit. Agree. Thank you so much to both of you, Soumya and Priyadi. आप प्लीज एवोल्यूशनरी साइंस और बिहेवियरल साइंस को थोड़ा एक बार यू काइंड ऑफ गो थ्रू इट, देन यू विल स्टार्ट लिंकिंग इट. आपका न्यूट्रिशन का बहुत लाइक इट विल एक्सपैंड. यू विल बी माइंड ब्लोन, बिकॉज दैट इज व्हाट वी डिड. एंड व्हाट वी स्टडीड इज जस्ट 1/4. 3/4 तो यही है, एवोल्यूशन है और बिहेवियरल है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. Definitely do that. Now send me a link or something if there is any material is Sure. available somewhere. Sure. Thank you Yes. so much. Thank you. Thank you, Inder. Thank you so much for your interest and your probing questions. Oh, Your awesome. answer was really awakening.
Thank you so Thank you. much. Okay. Thank So you. guys, that thank you इंद्रजीत जी. I think ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कहीं ना कहीं, it was at the back of the head कि मैं कितनी कैलोरीज का खाना खाऊं, मैं 2 वक्त खाऊं, 3 वक्त खाऊं. करण जौहर ने तो फेमस कर ही दिया है, 1 टाइम मील फॉर द डे. OTD कुछ तो है वो, है ना, OTD, 1 टाइम मील समथिंग. तो उसके बारे में गाइस, भी तो आ गया ना, करण जौहर जो बोलता था उसके बारे में भी आ गया है अभी. पीपल वर आस्किंग कि कैन वी टेक ओजेम्पिक एंड ऑल, सो आ गया हाँ उसके बारे में भी, हाँ. राइट. हाँ, those drugs तो दी like people's मतलब patients are so much aware these days. Every other patient they come with us with that injection और उस फोटो के साथ कि आप ये स्टार्ट कर दीजिए मेरा Ozempic और शॉर्टकट. Pioglitazone and these things. हाँ, SGLT2 inhibitors basically. So या. और ओके, मैं बायोगैस उसके को तो बारे में बैन कर रखा है, कैन है आई ना. ऐड समथिंग टू दिस? इंद्रजीत, यू आर इन द yeah, इंडस्ट्री और ये yeah. आप दोनों के लिए भी होएगा कि आई नो समवन हु इज ऑन मेंटल हेल्थ इशू की वजह से रेगुलर मेडिकेशन पर है, रेगुलर फॉर इयर्स, फॉर नियरली 5 6 7 years. तो उसने लिया इंजेक्शन फॉर वेट लॉस. तो वेट लॉस तो उसका हुआ, पर वो एंड डॉक्टर कहते हैं कि कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा, ये आपका जो दूसरी मेडिकेशन पर है, पर उसके वो थे कि एपिसोड हैपेंड. Yeah, there's और not so much of actually वो अभी कुछ ज्यादा तो डाटा भी अवेलेबल नहीं है उनके लिए ना. हाँ, पर जो भी ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी मेंटल हेल्थ की उसमें है, वो उस स्टडी में नहीं आता कि वो उनका इफेक्ट करेगा. वो कहते हैं यू कैन हैव इंजेक्शंस, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस. पर आई हैव सीन, किसी को हॉस्पिटल में मैं गई थी तो वहां पर ये लाइव मेरे को उन्होंने बताया कि ये ऐसा हुआ है कि डॉक्टर्स ने नहीं बताया. एंड और बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली वो थी. तो ये कभी भी ना करो ये. यस. एक्चुअली अभी हमें भी नहीं पता है, मतलब दिस क्लास ऑफ ड्रग इज वेरी कंपैरेटिवली वेरी न्यूअर इन इंडिया में. तो अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसका जो अभी पेटेंट खत्म हुआ है. तो दैट ड्रग इज मतलब ओनली यूएस एफडीए तक अप्रूव था और यूएस में ही चल रहा था. तो अभी हमारे पास रिसेंटली आया है एंड स्टिल मतलब देयर इज लॉट ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग ऑन. अभी भी वो हमारी तो आए. आरएसएसडीआई है नेक्स्ट मंथ में, नवंबर में. तो हाँ, वहां पे दोबारा से इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन है और बहुत सारी जो है रिसर्च अभी हो रही है, चल रही है एंड स्टिल गोइंग ऑन. तो अभी भी हम जान रहे हैं मेडिकोस भी तो जो है मैं ना, वही बाय बोल द रही टाइम हूँ. ग्रेजुअली विल आई एम गेट टू नो द कॉलिंग, बटन. ये आई एम कॉलिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ साइकेट्रिस्ट ने यस कर दिया, डॉक्टर्स ने यस कर दिया, एंड द पेशेंट शी टुक द इंजेक्शन. और बड़ी देर तक तो पता ही नहीं चला कि ये क्यों हुआ. एंड शी हैड दैट, उसको जो भी. तो बी वेरी केयरफुल कि अगर स्टडीज अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं तो लेना नहीं चाहिए. मेरे को ये एकदम से ध्यान में आया है, तो तब Yes, मैंने thank आपसे you. शेयर किया है. Thank you so much. Actually, from this very particular platform, we want to say, give a very strong message. I think Didi and me, we resonate with this. चाहे सिंथेटिक मटेरियल हो, चाहे नेचुरल हो, कोई एक चीज दवाई नहीं है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मॉन्क फ्रूट स्वीटनर लो तो आपका ये कम हो जाएगा, डेट्स खाओ तो स्वीट. देर इज नो वन थिंग इन दिस नेचर दैट कैन फिक्स योर प्रॉब्लम्स, है ना. वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज में. सो बीट सिंथेटिक, जैसे कि ये ड्रग्स हो गए, या फिर ये नेचुरल भी हो ना. कभी कभी स्टीविया बीच में आ गया था, हाँ. घी को स्टॉप करने को. लाइक ऑल दिस ना, वो बस वही है, ट्रेंड है. वॉट वर्क्स इज योर एंसिस्टरल ईटिंग. जो एवोल्यूशनरी बेस्ड ईटिंग चल रहा है, जो टाइम एंड टेस्टेड रिचुअल्स चल रहे हैं, बस उन्हीं को आपको फॉलो करना है. बिकॉज दोज डोंट फॉल, दोज डोंट गिव साइड इफेक्ट्स टू यू गाइस, है ना. और जो भी ले रहे हो, नया चीज लेना मना नहीं है, बट उसको सोच समझ के धीरे धीरे से इंट्रोड्यूस करो. चपक के जाके लपेटने की कोई जरूरत नहीं है. there's no need of quick action, just take time, take it slowly, enjoy it. वैरायटी, नेचर ने वैरायटी इसीलिए बनाया ताकि हम सब एंजॉय कर सके उस चीज को, बट उसको अब्यूज ना करे.
एनीथिंग इन एक्सेस इज अ अब्यूज। ये हमको सभी स्क्रिप्चर्स में लिख के आया है, हमको साइंस में भी बताया है, अति प्रूव। सर्वत्र वर्जेत, हिंदी अपने संस्कृत में बोलते हैं ना, देखो अति सर्वत्र वर्जेत। देखो, पानी भी एक्सेस में लोग 6-6 हाँ, 7-7 लीटर पी के एडमिट हुए हैं भाई। तो बिल्कुल। वो भी नहीं है। सांस लेना अच्छा है तो सांस, यू कैन नॉट जस्ट कीप inhaling, your lungs are going to burst, so you need to do it in moderation, है ना? That's the bottom line for this, and that is the bottom line for even your festivals. So coming back to our topic for today, कैसे प्रिपेयर करना है आपके फेस्टिवल के लिए, हम क्विकली थोड़ा बात करते हैं अभी। लेट मी जस्ट पुल आउट माय Good evening, पॉइंटर्स। Dee. हाय सतविंदर जी। Hi, Soumya. Hi, Priya Dee. I have a Hi. question to you. Like, it's out of context, but it's like literally very important to me. ओके Like, अभी ना मैं I'm preparing for the interviews दिसंबर में मुझे देने हैं, तो मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना होता है, बट वो नहीं हो पा रहा। Can you like suggest me some tips? कॉफी से कोई कुछ नहीं हो रहा। I don't know what to do. Make a habit to it, na? Make a habit to study. भाई तो यही It's a habit बोलेगा। that I am studying. Okay. हाँ भाई बहन है क्या ये हाँ। दोनों? हाँ, भाई साहब। ओके सतविंदर, your sleep and your mindset can help you with your cognition. This is from my personal journey that I'm sharing I it to you. sleep at 1 o'clock around. This thing now, you need to shift it to 10 o'clock, 10 to 3. I know right now in this age it feels very bonkers, But like right now I can't now because like I have a month, और shift करने में मैंने try किया shift करने का, but हुआ नहीं वो, and now Okay. I don't have that much time, तो ठीक है, वो नई टाइम है तो फिर यू शुड स्टार्ट डूइंग माइंडफुल एक्सरसाइजेस, माइंड मेडिटेशन करना है, माइंडफुलनेस करना है, दैट योर पावर इज हियर, okay. इट्स नॉट इन एन एक्सटर्नल सोर्स। कॉफी Okay. में नहीं है, ब्लू लाइट कम करने में नहीं है, इनमें से कुछ पावर नहीं है। जो भी पावर है यहाँ पे बिलीव आनी चाहिए कि आप कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपका फोकस है। जब तक ये बिलीव नहीं होगा ना तो एक्शन में नहीं आएगा। सो ये बिलीव करने के लिए क्या करना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान में क्या होगा, आप अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे। आप जब अपने आप से कनेक्ट होगे तब आप जो भी फीड करोगे उस टाइम पे, है ना, तब वो फीड आपका वायरिंग चेंज करके, आपका न्यूरॉन्स फायरिंग डिफरेंटली होता है, तब जाके आपका लाइफ में चेंज आता है। Okay. बिकॉज वी हैव हियर मनीष सर जो है यहाँ पे, उनको सेम प्रॉब्लम था। मनीष सर, डू यू वांट टू ऐड? Sorry, ma'am. Come again. I was busy. Cognition, the little girl here, Uh-huh. she wants to improve her focus and concentration. She has her exams due. Okay. Eat light. This is in last 15 days, this is what I understood to increase your focus, concentration. Do meditation, eat light, and Sleep right. eat on the right time. Yeah, eat on the right time and sleep well, at least 6-7 hours, 7 hours minimum. Okay. Thank you so much. Thank you all of you. Thank I you. know it is not the answer you were looking for. Trust me, I can feel you. At your age, even I wanted the jadui formula for this. But at the age of 33, I want to tell you, Are you 33? yes, I want to tell you that I just thought you are 24 or 25. Sorry. thank you. No, don't be मैंने sorry. 24 गेस किया था इसका, और इसने मुझे मंडे को बताया ये 33 की है, तो मैंने कहा, और मैं 24 की ही लगा के बैठी थी क्योंकि लगती Soumya, you don't हाँ। look like 30. 33 is like too old for you to say. I know, right? I know. I feel like 16 for myself inside me. But yeah. 10 years younger at least. तो प्रिया दी ने मेरी एज एक्सपोज कर दी, अदरवाइज तो आई डोंट लुक लाइक You also No, don't you look look like. like. Okay, Satinder. Let us जो बुजुर्ग लोग कहते थे ना, अनफॉर्चुनेटली डियर, इसमें वो सही है।
बाकी सब में थोड़े बहुत 19-20 का फर्क है उनमें जो बोल रहे थे, बट इसमें जो है ना, टू इंक्रीज योर फोकस you have to eat light, you have to sleep right, and you have to meditate. These are the 3 things, because all the answers that you're cramming to study are already inside you. Your subconscious mind already has that. All you need to know is access it. How to access it? You have to meditate. Okay. Okay? ज्यादा पढ़ने से आप नहीं स्कोर करोगे, ज्यादा जो याद रखा है उसको बाहर निकालने में, उसके लिए क्या लगता है? फोकस लगता है. फोकस कैसे लगता है? You have to do the meditation. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dee. Thank you. Thank you, Thank you thank so you. much, Satwinder. Right. Okay. Let's go back to our festivals. Okay. So first thing that we want to kind of rewire in all your minds, कि festival is about movements and not meals. ठीक है? आप घर परिवार लोग साथ में इकट्ठा, लोग दूसरे देश से आते हैं, दूसरे कॉर्नर ऑफ द नेशंस आ रहे हैं, है ना? दे आर कमिंग एंड फ्लॉकिंग इनटू योर हाउस, इनटू वेयर यू आर. चेरिश देम. जिन लोगों को आप फोन पे बात करते थे, जिन लोगों को देखने को आस लगती थी, वो लोग आ रहे, उनको सेलिब्रेट करो, उनके साथ रहने का फीलिंग को सेलिब्रेट करो. डोंट मेक इट अबाउट मील. Meal is just adding tadka for that whole reunion. ठीक है? It is because it is going to involve all your 5 sensories, है ना? एक तो है आप प्रेजेंट हो वहां पे, लोग आपके भाई बहन सब लोग आए हैं, यू आर ऑल हैविंग फन. वो फूड क्या कर रहा है? आपका आंख को कैप्चर कर रहा है, आपका नोज को कैप्चर कर रहा है, आपका टंग को कैप्चर कर रहा है, आपका स्किन, ये सेंसेस को, टच को कैप्चर कर रहा है. इट इज लॉकिंग इन दैट मोमेंट, इट इज नॉट लॉकिंग द मील इनसाइड यू. ठीक है? तो डू नॉट मेक फेस्टिव सीजन अ सेलिब्रेशन ऑफ मील, बट अ सेलिब्रेशन ऑफ मोमेंट्स. आप कहीं जा रहे हो, किसी के शॉप जा रहे हो, है ना? अभी दिवाली के टाइम आपको लोग शॉप पे बुलाएंगे ना, उधर पूजा, लक्ष्मी पूजा हुआ रहता है. They are not asking you to come there and eat their kaju katlis or samosas and puri and kheer. What they are asking you is, come, please bless our shop. Bless us with abundance. Let there be flow of money in our shop. आपके पैर पड़ने से हमारे शॉप में शायद बरकत आएगी. That is what they are asking. So go with that intention. प्रसाद लेना है, थोड़ा सा लो, खाओ. Because आप जब जा रहे हो उधर, एंड इफ यू आर ईटिंग इट विद गिल्टी ऑल्सो, यू आर लिविंग गिल्टी एनर्जी एवरीवेयर. आपके अंदर से गिल्ट का एनर्जी बाहर फूट फूट के गिर रहा है, शेम का बाहर फूट फूट के गिर रहा है, इफ यू आर ईटिंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है? सो इफ यू आर गोइंग टू ईट इट आइदर विथ 100% consciousness that okay, I'm eating it and it's good for me, whatever it is, it's a prasad and I'm eating it. Either eat it like that. If you do not have that consciousness, if you do not have that mindfulness to eat it like that, then just have a little with lot of blessings and bless that person. This is first thing. So it should become your mantra. Anchor, celebrate the moments, not the meals. Okay? Your tagline, जैसे कैडबरी का आता है ना, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, ये आपका टैगलाइन, सेलिब्रेट मोमेंट्स नॉट मील्स. और वो कैडबरी की वजह से ही है कि हम सब लोग उस दरिया में निकल गए हैं. खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. वी हैव टू सल्यूट देयर मार्केटिंग पर्सन, दैट इट्स बिकॉज ऑफ दैट ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आपको और ये क्यों याद है? रिमेंबर, ये एडवर्टाइज बार बार आया है, और वो भी कब आया है? जब आप मूवी देख रहे थे, जब आप ऑलरेडी फील गुड कर रहे थे, तब उन्होंने ये एडवर्टाइज चलाया. फील गुड एडवर्टाइज, लॉकड इन हो गया. जब भी आप जो भी अच्छे जोन में कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, उसके कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी करोगे, वो लॉक इन हो जाता है आपके अंदर. ठीक है? सो रिमेंबर टू डिसएसोसिएट. This is one thing. And Didi, I'll tell them one thing and I'll give you. 1, 2, 3 rule. ठीक है? As a dietitian, let me tell you. 1, 2, 3 rule. ठीक है? Everybody. Okay? प्लेट में
और दिन में 1 पोर्शन ऑफ द स्वीट फूड और द फेस्टिव फूड, जो भी है, ठीक है, 1 पोर्शन, 1 पीस हो सकता है, एक पूरन पोली हो सकता है, या 1 कटोरा खीर हो सकता है, जो भी है, एक ही पोर्शन, 1 पोर्शन ऑफ दैट। 2 पोर्शंस ऑफ योर प्रोटीन, पनीर हो सकता है, या दाल हो सकती है, या कर्ड हो सकती है, जो भी है, 2 पोर्शन, 2 कटोरे में। 3 पोर्शन ऑफ योर वेजीज, एक तो रॉ वेजिटेबल्स हो गए और एक सब्जी हो गए। आप पहले 2 ही ले लेना पोर्शन, फिर भी भूख लग रही है तब जाके आप और एक कटोरी सब्जी ले लो या सलाद ले लो, जो भी है। 3, क्या हो गया, 3 पोर्शन ऑफ योर वेजिटेबल्स, 2 portions of your protein and 1 portion of your festive food. Festive food usually carbohydrate rich ही होता है. It will be either sweet or it will be like roti or whatever it is, है ना? This is 1, 2, 3 rule. आप इसको follow करो, there is no tension in your life. ठीक है, festive food festival ऐसे चला जाएगा आपका, ठीक है? और pick एक, either sweet or fried food. आप कहीं पे गए हो, 2 ऑप्शन, काजू कतली भी है और समोसे भी है, दोनों नहीं खाने का, पिक वन। आइदर मैं स्वीट खाऊंगी तो स्वीट ही खाना है, काजू कतली है, कुछ और भी है, वो स्वीट ही खाओ, फ्राइड फूड के सेक्शन में मत आओ। अगर फ्राइड खा रहे हो तो स्वीट के सेक्शन में मनाओ, बिकॉज गिव 1 टॉक्सिन फॉर योर बॉडी टू फाइट, डोंट गिव 2 टॉक्सिन्स, ठीक है? हाँ, अभी बहुत सारे शाने लोग होंगे यहाँ पे, मैं शानी तो हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरा दिमाग चल रहा है। सौम्य, जलेबी है तो ये स्वीट में आता है कि फ्राइड में आता है? तो ये तो कॉम्बिनेशन में आ गया ना। मनीषा जी हंस रहे हैं इधर। कंसिडर, ट्राई टू अवॉइड डीप फ्राइड स्वीट फूड, ठीक है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन। जामुन हो गया, जलेबी हो गया, ठीक है, खीर फाइन, हलवा फाइन, ठीक है, पकोड़े फाइन, समोसे फाइन, कचौरी फाइन, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। हैंडिंग ओवर टू यू दी। तो जैसे सौम्या ने बताया अभी कि मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना है, मील्स को सेलिब्रेट नहीं करना। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता, हम लोग उसको खाने से जोड़ लेते हैं कि सारे के सारे जो सेलिब्रेशन है हम लोग हमेशा खाने के साथ जोड़ लेते हैं उसको, तो खाने के साथ नहीं जोड़ना है। सेलिब्रेट दोज ब्यूटीफुल मोमेंट्स। अदरवाइज हम लोग जब भी, अभी मैं किसी से बात कर रही थी, देयर वाज अ क्लाइंट एक्चुअली, शी वांटेड टू जॉइन अस ऑन इन द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाई? बिकॉज अक्टूबर में अभी दिवाली आ जाएगी, है ना, उससे पहले करवा चौथ आ जाएगा, फिर नवंबर में उनका बर्थडे आता है, वो आ जाएगा, फिर दिसंबर में सारे आ जाते हैं, 25 दिसंबर हो गया, फिर न्यू ईयर हो गया, उसके बाद वो ज्वाइन करना चाहते हैं। सिर्फ उनकी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी दिवाली आने वाली है तो हमारा वेट तो बढ़ने वाला है, अभी हम लोग अपने आप को वॉच करके क्या करेंगे। तो ये हम लोगों ने नहीं सोचना। अगर आपने कोई डिसीजन लेना है तो इट स्टार्ट्स टुडे। Today is the day when you should take this decision that yes, I want to go for this and I have to go for this. Do not procrastinate it. तो फेस्टिवल का मतलब होता है आप अपने मील्स को एंजॉय जरूर करें, लेकिन मोमेंट्स को एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जब आप स्वीट उठाते हो, स्वीट खाने का मन करता है आपका, अब वो जो स्वीटनेस है ना, आप अपने घर पे किसी को गिफ्ट जब देने जाओगे तो वो मिठाइयाँ वगैरह जो हम लोग देने का ट्रेंड है, मिठाइयाँ, या आजकल बहुत ज्यादा प्लास्टिक्स के आइटम्स वगैरह भी हम लोग बहुत देते हैं, वो सब मत करो। मदर अर्थ को परेशान मत करो इतना। वैसे ही हम लोग इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज कर रहे हैं जहां पर हम लोगों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे अनअवॉइडेबल चीजें हैं जहां पर यूज हो रहा है प्लास्टिक, जहां अवॉइड नहीं कर सकते हैं। बट एटलीस्ट हम लोग जाकर शॉप से ये ना लाए ना, खजूर दे सकते हैं हम एज अ गिफ्ट। हमेशा ऐसा चीज दो जिसको आपको लगता है कि आप उसको खा सकते हो, है ना। अगर हमने वो मिठाइयों के लगाने शुरू कर दी, बर्फियां और रसगुल्ले देने शुरू कर दिए, तो क्या होगा, वो हमें पता है ना वो रिफाइंड शुगर है, हमारे लिए खराब है, तो सबके लिए खराब है। सबसे पहली बात तो ये है, देना गिफ्ट में वो चीजें हैं जो कि आप खुद खा सकते हो, है ना। उसको ऐसा नहीं हो कि आपके पास वो सोन पापड़ी आए या आपने किसी और को भेज दिया, उनसे फिर किसी और पे पता चले वो डब्बा वापस आपके पास आ गया। तो हैव अ बिग हार्ट टू गिव अवे। मे बी ड्राई फ्रूट अगर आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, या डेट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो दे सकते हो, ठीक है। हनी, अब हनी आपको दीदी, सॉरी, आई जस्ट क्या, रिमेम्बर, हनी, हनी, हनी।
Okay, honey, yes, honey you can give, but I actually do not take honey ना, तो इसलिए मुझे honey का एकदम इससे याद नहीं आता. So हाँ, yeah, honey can be given. प्रीमियम हनी अभी बहुत सारे आते हैं, प्रीमियम Premium वाले. quality के, हाँ, हाँ, उसके लिए वो बिकॉज जरूरी. पीपल विल नॉट बाय दैट ऑन जनरल लेवल पे, नहीं डाबर का ही हनी लेते, बट इफ यू कैन गिफ्ट प्रीमियम क्वालिटी का हनी, इट्स अ ग्रेट गिफ्ट. तो डाबर्स हनी वैसे भी इतना काफी अडल्ट्रेटेड होता है ना आजकल तो हनी का, इसीलिए तो हाँ प्रीमियम क्वालिटी का लेना जरूरी है आपको. ओके, सो नाउ व्हेन यू हैव टू हैव अ पीस ऑफ स्वीट, कुछ भी मीठा खाने से पहले आप क्या करो, एक गिलास पानी पी लो. बहुत बड़ा हैक है ये और बहुत अच्छा. कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि दिवाली से पहले क्या हम लोग सफाइयां करने लग जाते हैं, वी गेट एग्जॉस्टेड एंड ऑल दैट, एंड हमारे बॉडी में क्या होता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि हम लोगों को भूख लगी है. वो वाला जो डेफिशिएंसी है ना, वो एक्चुअली इट इज ऑफ वाटर. आपको प्यास लगी होती पर आपको लग रहा होता भूख लगी, क्योंकि मैंने बहुत काम कर लिया, तो आप फटाफट जाके वो मिठाई का पीस उठाते हो या फिर कुछ भी मीठा खाने का वो उठाते हो. तो आप क्या करो, सबसे पहले मीठा खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, है ना, कि आपको पता चलेगा कि मुझे कितना, तो आपके पानी से ना आपका पेट थोड़ा सा भर गया, उसके बाद शायद आप सिर्फ एक पीस उठाओगे या फिर आप थोड़ा सा खाओगे, वहां पर आपने रोक लिया अपने आप को. थ्रू आउट द डे have at least 3.5 to 4 liters of water in a segregated manner. हाइड्रेटेड रखना अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अपने आप को इन्फ्यूज कर लीजिए अपने, मतलब पानी के अंदर ना अपना लेमन और अपना पिंक सॉल्ट डाल के इन्फ्यूज करके वो वाटर भी पी सकते हैं, जिसके कारण आप ना सेटिस्फाइड रहोगे, आपकी टमी सेटिस्फाइड रहेगी, तो यू विल नॉट गो ऑन बिंजिंग ऑन शुगर, ऑन स्नैकिंग ऑन शुगर्स, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. उसके बाद फेस्टिवल्स इज अबाउट हमको ये बहुत टेंशन हो जाता है कि फेस्टिवल है तो हम लोग जिम में नहीं जा सकेंगे, जिम का तो टाइम नहीं मिल रहा है, जिम तो बंद है. तो आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है, फेस्टिवल में इंजॉय करो ना, डांस करो खूब सारा. सभी अपने घर में आते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इंजॉय तो करना है, पार्टी तो करनी है, डांस तो कर सकते हैं ना हम लोग. फॉर डांसिंग इज सच अ ग्रेट वर्कआउट, आप वो कर लो. सो इस तरह से हम लोग अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि शुगर में या फेस्टिवल सीजन में अपने आप को कैसे हमने प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो हमारे बात में ये वाली बात हो गई. उसके बाद जो है हम लोग ये समझे कि एक बात ये है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि आप अपने माइंड को कैसे यूज करो. 1 मिनट, सौम्या प्लीज टेक ओवर, देयर समवन ऑन द गेट, आई एम जस्ट चेकिंग ओवर. ओके. ओके, ठीक है. हम बात कर रहे थे माइंडसेट इज एवरीथिंग. जैसे कि मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे कर देती हूँ. जैसे कि सतविंदर बेबे को हम मैं समझा रही थी कि माइंडसेट इज एवरीथिंग, है ना. ये सोच के मत जाओ कि हाय यार मैं ये खाने खाने जा रही हूँ, या उसको जाके मना करना पड़ेगा. आई रिसेंटली वी हैड समवन वन ऑफ आवर क्लाइंट शेयरिंग कि कैसे मैं मना करूँ, है ना. मैं गई हूँ उनके घर में, कैसे मना करूँ, है ना. सेइंग नो इज अ हार्ड टास्क ड्यूरिंग फेस्टिवल, है ना. इसके लिए माइंड प्रिपेयर करना है, जो दीदी समझाएगी आपको. अनम्यूट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी लर्न टू से नो. वी हैव टू लर्न टू से नो, क्योंकि हर चीज के लिए यस करना वो ठीक नहीं है. आपको अपने हक की बात बोलनी पड़ेगी कि नो, एंड उसके लिए क्या करने की जरूरत है ना, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू से नो. पहले पहले आपको मुश्किल लगेगा कि कैसे बोलेगा, लेकिन आपने जब अपना डिटर्मिन कर लिया, आप हाँ पता है क्यों बोलते हो. अगर आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं मन हो कि यार चलो ले लेती हूँ, उसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा नहीं लगेगा, आपको लग रहा है. वॉट एवर इज देयर इन योर माइंड, you actually see it in front of you. If someone is coming to me and offering me a chocolate, and since I also love chocolate to some extent, मैं छोड़ रखा है, मैं चॉकलेट नहीं खा रही हूँ, लेकिन मुझे लगेगा कि यार उसको बुरा लग जाएगा, तो मेरे अंदर जो एक बैठा हुआ ना पुराना छोटा वाला बच्चा जिसको चॉकलेट बहुत पसंद था, एक्चुअली मैं ये चॉकलेट उसके कारण खा रही हूँ, उसके कारण नहीं कि कोई और इंसान मुझे आके बोल रहा है. अदरवाइज मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मेरे पास कुछ कोई भी सिल्क लेकर आ जाए, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं खाऊंगी. लेकिन चूंकि मेरे को बचपन की यादें हैं जब मैं वो चॉकलेट खाती थी, उसके कारण मुझे लगेगा कि नहीं मैं खा लेती हूँ, नहीं तो उस बंदे को खराब लग जाएगा. सो यू फर्स्ट डिसाइड ऑन योर सेल्फ कि वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट. इफ यू रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको नो कहना पड़ेगा. आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं, दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू सर्व मी, सो आई एम नॉट हैविंग दिस. और एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने साथ कि नहीं करना है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दिमाग का जो माइंड है ना, वो आपको बेवकूफ बना रहा है. आप चाहते हो, अंदर से आप चाहते हो, लेकिन वो बुलवा उसके मुंह से रहे हो. सो योर माइंड इज एक्चुअली द थिंग, इट हैज गॉट एवरीथिंग. जो भी आमने सामने हो रहा है ना आपका, इट इज देयर इन योर माइंड ओनली. सो ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट व्हेन यू हैव टू से नो.
नो कहना आपको आना चाहिए, कोई भी स्वीट हो कुछ भी हो। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कहीं जाती थी तो मुझे भी दिया जाता था स्वीट और मुझे लगता था कि यार उनको बुरा लग जाएगा। बट वंस आई गॉट ट्रेन्ड हियर इन ब्रेन टू बॉडी रेवोल्यूशन, और हम लोगों ने जब सौम्या ने कोर्स किया तो हम लोगों को पता चला ना, एक्चुअल कारण वही है कि कहीं ना कहीं छोटा सा भी हो ना, वो हमारे मन के अंदर ही है वो चीज। और जैसे किसी ने और ने बोला, हमने 4 बार मना किया, लेकिन चूंकि हमारे मन के अंदर है तो वो इंसान आपको बोलेगा और आप वहां से ना चाहते हुए उठा लोगे। और उसको खाओगे कैसे? एक तो खुश होके खा लो, ठीक है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपने गिल्ट वाली एनर्जी में से खाया, अच्छा मैं खा रही हूँ, उसको ऑब्लाइज करने के लिए खा रहे हो, उसको ऑब्लाइज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए खा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो लिटिल चाइल्ड है ना, वो खाना चाहता है उसको। सो ऑलवेज डिटरमाइन दैट इफ दिस थिंग इज नॉट सर्विंग मी, आई एम नॉट गोइंग टू हैव इट। सो आपको, यू हैव टू लर्न टू से नो। रात को मिठाई ना खाएं। कहीं पर अगर रात को जा रहे हैं, अब दोबारा एक और चीज है, मीठा जो है, कोशिश करें आप शाम को 7 बजे के बिना बाद बिल्कुल भी मीठा ना खाएं। आप ना, जिस तरह से सौम्या ने अभी बताया ना कि आप वो 3-2-1 वाला जो पॉलिसी उसको अप्लाई करो, कि आपको अगर कुछ मीठा खाना भी का मन भी करे तो उसको दोपहर को कर लो, रात को बिल्कुल भी मत खाओ आप, है ना। कोशिश करो अपने तरफ से जितना कोशिश कर सकते हो। अगेन वही बात आएगी, कहा आपका मन अगर डिटर्मिन कर लेगा कि मैं ना कर सकती हूँ तो आप ना कर सकोगे। और अगर आपने वो मिठाई का पीस उठा लिया तो साथ में आपको किसी और कार्ब्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई फ्राइड लेने की जरूरत है। वो एक पीस आपके काजू कतली के 2 पीस ने आपका पूरा कर दिया, तो आप उसको खत्म कर दो, उसको बंद कर दो वहीं पर। सो इट इज नॉट जस्ट दैट, यू आर नॉट रिप्लेसिंग योर रोटी विद काजू कतली। ओके मनीष, प्लीज गो अहेड। सो यू आर नॉट रिप्लेसिंग योर काजू कतली विद रोटी। एक्चुअली आप अपने बॉडी के अंदर वो डाल रहे हो, खाली कैलोरी नहीं, वो उसके अंदर बहुत और भी बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है। सो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या है वो चीज, है ना। यू हैव टू लर्न टू से नो। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जिम में तो ठीक है नहीं जा पा रहे, तो हम लोग, मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि आप डांस कर, हाँ ना, आप डांस कर सकते हो, या आप कुछ ऐसा लोगों से मिलने जाते हो, आप अपने घर के पंखे साफ कर लो भाई, अगर आपको करना है वर्कआउट वो कर सकते हो। बट देन किसी आपको जिम बंद होगा इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो हो गई बॉडी, फिजिकल बॉडी की बात। नाउ इस दौरान हमारे मन में एक मेंटल स्ट्रेस भी बहुत हो जाता है कि हमको अपना घर चमकाना है वरना लक्ष्मी माता नाराज हो जाएगी, ये वो। डी क्लटर करना हमारे लिए जरूरी है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस लेना वो बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। आप फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में क्या करो, दिवाली के सफाई के दौरान, इसके दौरान अपने दिन में 5 बार या 3 बार कम से कम अपना ना एक बार पॉज ले लो। पॉज लेके 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग कर लो। सिर्फ ये 5 मिनट की जब आप ब्रीदिंग करोगे ना, तो आपके मन के अंदर वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, वो डी स्ट्रेस हो जाएगा अपने आप। और अगर आप डी स्ट्रेस्ड रहोगे तो यू विल नॉट गो एंड जंप टू दैट पीस ऑफ केक और पीस ऑफ मिठाई इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस इज व्हाट हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, कि मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना है, मील्स को नहीं। हम लोग अपना आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे सौम्या ने बताया कि हमने अपना 1-2-3 वाला अपनाना है, कि अगर मैंने एक एक चीज से रिप्लेस करना है, अगर मैंने मीठा कुछ उठा लिया तो मैं फ्राइड कुछ नहीं उठाऊंगी। वो कोशिश करनी है कि हाई प्राणिक वैल्यू वाला फूड का, अपनी जानकारी के लिए प्लीज हमारा यूट्यूब का वीडियो देखें कि हाई प्राणिक फूड कौन कौन से होते हैं, उसको वेरिएशन करके उसका आप कोई डिश बना सकते हो। गिफ्टिंग के दौरान आप वही चीज औरों को दो जो उसको आप खुद खाना चाहोगे, आप उसको खुद एक्सेप्ट करना चाहोगे। ये नहीं कि घर में एक्स्ट्रा है तो उसको दे दिया, वो नहीं। अपना घर में जो आप औरों को, आप अगर कर सकते हो तो आप ड्राई फ्रूट्स दो ना, या तो फिर आप खजूर दे सकते हो, ये करो, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने आप को हाइड्रेटेड जरूर रखना है। अगर आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे तो फिर मिठाई के पीस के ऊपर टूट नहीं पड़ोगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आप सभी को, हम सभी को, देखो पता है क्या, इन सब चीजों का मतलब ये होता है कि हम सभी को पता होता है, लेकिन बार बार जब हम अपने आप को ये बताते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज व्हाट, इट इज गेटिंग डी कोडेड इन दैट मैनर। बचपन से कोडिंग उसकी तरफ क्या हो रखी है, दिवाली, उसके बाद भाई दूज आएगा, फ्रिज में को याद है ना, हमारे घर में एक्चुअली पहले ना घरों में इतनी ज्यादा मिठाइयाँ नहीं आती थी, खीर बन जाती थी बर्थडे के टाइम पे, ये सब हो जाता था। पर ये जो मिठाई के बॉक्सेस पड़े रहते हैं ना आजकल फ्रिज में, वो सब नहीं होता था पहले, वो आता था दिवाली के टाइम या भाई दूज के टाइम, वो पूरा भर जाता था। तो वो हमारी मेमोरीज में याद है, हमको बचपन से वो बातें याद है, उसको अभी हम लोगों को दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है, पहले हम लोगों में अवेयरनेस नहीं थी इतनी, अब हम लोग अवेयर हैं। वी कैन नाउ टेक अ स्टेप टू रीट्रेन आवर माइंड इन दैट मैटर, कि हम लोग अपने चॉइसेस का ध्यान रखें कि व्हाट इज आवर चॉइस। अपने चॉइसेस को हेल्दी करें, अपने ब्रीदिंग का ध्यान रखें, पानी पिए, मूवमेंट करें, डांस कर सकते हैं, ये सब करें आप, है ना।
खड़े होके आप ऑन स्पॉट डांसिंग कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। उसके बाद क्लीनिंग के लिए हम औरों को हायर कर लेते हैं, अर्बन क्लैप आएगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। आप खुद भी कर सकते हो, एक्सर्ट कर सकते हो। फिर आपका जो आपने खाया पिया है वो भी हजम हो जाएगा ना। पहले के लोग इतना खाते थे, फिर क्यों नहीं उनका फैट बढ़ता था? क्योंकि वो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करते थे। तो वो कर सकते हो। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें करके हम लोग एक बहुत ही हेल्दी तरीके से इस सेलिब्रेशन के मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, विदाउट एडिंग any gram of fat into your body. You do not have to. You have to feel safe and secured. जब आप safe और secured feel करोगे तो your body will not require an additional blanket of fat to cover you. That is just your insecurity which is making your body to cover yourself with that extra blanket of fat. You do not need that. अपने आप को de-stressed रखो, आपको किसी एक्स्ट्रा फैट की आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेलिब्रेशन करो, मजे से करो, खूब करो, अपना फ्रूट्स खाओ, एंजॉय करो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हेल्दी चॉइसेस क्या है हमारे लिए। बिहेवियर, अगेन यहाँ पर वही वाली बात आ गई, बिहेवियरल साइंस को समझो कि क्यों आप वो मिठाई का पीस उठा रहे हो, इमोशंस के कारण उठा रहे हो। तो अपने आप को रोको कि नहीं, ये चीज अब मुझे सर्व नहीं करती तो मुझे इसको नहीं लेना है। जितनी बार आप उसको मना करोगे ना, उतनी बार, मेडिटेशन की तरह ये वाली बात, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता होता है, उनको ये बोला जाता है कि आप अपने सांसों पे ध्यान दो। और जब आप अपनी सांसों पे ध्यान देते हो, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, लेकिन जितनी बार इधर उधर जाएगा उतनी बार आप पकड़ के यहाँ पर अपने सांसों पे लेकर आओगे। तो वो भी प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस किया, यहाँ ले गया। इसी तरह से लर्न टू से नो, प्रैक्टिस टू से नो। वेन यू प्रैक्टिस टू से नो, एक बार आपको दिक्कत आएगी, दो बार दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको दिक्कतें आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड अब समझ जाएगा कि अब इसको बेवकूफ बनाना मुश्किल है, अब नहीं बनेगी ये बेवकूफ, तो अब आप हेल्दी चॉइसेस ही आप अपनाओगे। ठीक है। सो या, दिस मच इज आई थिंक इतना हम लोग कर सकते हैं आज। इट्स ऑलरेडी 7:10 एंड ऑब्वियसली फेस्टिव टाइम है, तो हम लोगों को भी जल्दी से वाइंड अप करना चाहिए। सो वी वेलकम ऑल योर क्वेरीज इफ यू हैव एनी, एंड देन वी वाइंड अप। Yes, Soumya, you want to add anything? No, Didi, if they have any questions. Yeah, please go ahead with your questions if you have any. Else, सब शांत हो गए दीदी। ज्यादा ज्ञान का डोज हो गया शायद। आई थिंक सो। कम करना था क्या गाइस? थैंक यू मनीषा जी, Okay. लव यू। Thank Awesome. you, Poonam ji. Thank you so much. Awesome guys, awesome. So as we said कि it all starts with a mindset, है ना? So during the course of Diwali and all, of course we will be doing our morning mind gym at 5 a.m. But we will be making sure that you all guys will be getting trained in that as well, like mindset, intention setting वगैरह हम करके देंगे. So if anybody is not sure how to go about it, or if you want to kind of learn it to do it in the right way, you can reach out to us and we will kind of help you with how to go about it and everything. ठीक है? So we would strongly recommend you to do the intention setting and mind rewiring first thing in the morning, and your day will be easy peasy afterwards. एंड यस, सतविंदर को मैं बोलना चाहूंगी, सतविंदर आप ये करो कि आप फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट इंटरवल में यू प्रैक्टिस कॉन्शियस ब्रीदिंग, यू टेक अ पॉज। ओके, Okay. जो भी कर रहे हो, जस्ट टेक अ पॉज। दिस क्लेरेंसिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू टेक अ पॉज, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। कॉन्शियस ब्रीदिंग करके जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, तब आपको फोकस बढ़ता है। आप खाना हल्का खा रहे हो, आई एम श्योर खाना तुम हल्का खाती होगी, उसके साथ प्राणिक फूड लेने की कोशिश करो, जिन चीजों में हेल्दी वेजिटेबल्स हो, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अपने पोर्शन, प्रोटीन्स का पोर्शन साइज कंट्रोल करके अपना खाओ। और वो खाना आप ठीक से खा रहे हो, आई एम श्योर इंद्रजीत भी है तुम्हारे साथ। बट देन आपको जरूरत है कॉन्शियस ब्रीदिंग करने की। और पानी को जब भी पी रहे हो, उसको इंटेंशन के साथ पियो। आपको पता है ना, फूड एंड वाटर कैरीज एनर्जी, तो आप उसको इंटेंशन के साथ खाओ पियो। और बहुत ज्यादा जरूरी है अपने आप को हवा, 3 चीजों का इस्तेमाल करो, भरपूर फ्री में मिलती है, हवा, पानी, सनलाइट। ठीक है। Okay. गिव योरसेल्फ सन एक्सपोजर। मॉर्निंग में सन का एक्सपोजर दो अपना 15 मिनट के लिए। सुबह सुबह उठो, कोशिश करो सुबह उठने की, 15 मिनट का सन एक्सपोजर दो। उसके बाद पानी को अपने इंटेंशन के साथ पीना है, और अपने आप को पॉज करना है। जब भी कुछ टेंशन हुआ ना लाइफ में, नहीं समझ में आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं याद हो रहा, आपको याद है ना हम लोग क्या करते थे? जब आपके मम्मा आपसे कुछ पूछ रही हो या कुछ आप अटक गए हो, क्या करते हो? हाँ, ऊपर की तरफ देखते हैं ना, देखते हैं ना हम लोग ऊपर की तरफ। तो ऊपर कौन है? भगवान जी थोड़ी बैठे हैं ऊपर के आपको वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं कि सत्तू को सब कुछ याद आ जाए, ऐसा नहीं है। दैट इज वॉट यू आर टेकिंग दैट स्मॉल पॉज।
वो Okay. स्मॉल पॉज जो आप लेते हो उसके कारण आपका दिमाग को रिकैलिब्रेट करने लग पड़ता है, चेंज जोड़ने लग पड़ता है। तो दैट स्मॉल पॉज कैन बी टेकन थ्रू आउट द डे। आप दिन में 5 बार 3 बार स्मॉल पॉजेस लो, और पॉज लेके अपने ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब आपको पता है, इनहेल करते हैं तो हमारी सांसें हमारी छाती और पेट में जाएगी, वो बाहर आएगा। कॉन्शियसली ब्रीद करो, तुमको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, तुम्हारा फोकस बहुत इंक्रीज होगा। स्ट्रेस मत लो। कोई हाँ कुछ ऐसा लाइफ एंड डेथ नहीं है, पढ़ना ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। कूल मतलब मैं रोने इजी लग लो। जाती हूँ जब ऐसा होता है ना कि हाँ चीजें नहीं हो रही, तो आई एम लाइक कि अब टाइम नहीं है, एंड आई नहीं जस्ट नहीं नहीं, स्टार्ट टाइम क्राइंग। बहुत है, सबके पास उतना ही टाइम है, तो सबके पास उतना ही टाइम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाली चीजें फॉलो करना जो सौम्या ने बताया है, जो अभी मैंने बताया, उनको फॉलो करो, जरूर तुमको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। And remember, after certain amount of years, your marks card has zero value to it. वो पड़े हैं मेरे ड्रॉवर में पड़े हैं. कुछ भी वहां से कुछ भी नहीं हो रहा, हम लोग तो वहां वो कोई काम कर ही नहीं रहे हैं जो हम पढ़ के आए हैं। So remember that. Always have that at the back of the mind. What you learn and what you're going to apply learning from it, that is what's going to take you forward. ओके, ओके। आपको एक आधा सेशन ना और लेना चाहिए, फेस्टिव हाँ. सीजन है तो लोगों को जरूरत है, ठीक है जी. जरूर क्योंकि मोनिशा अगले जी। फ्राइडे तक तो फिर 7-8 दिन बीच में, तो कोशिश करके, मुझे पता है आपका भी बहुत बिजी शेड्यूल है, बट एक चाहे शॉर्ट सा ले लीजिए, पर हमें ना लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा पहले से ही कर लो कि हम कर सके। अब मेरी भाभी ने कनाडा से ज्वाइन किया है, अमेरिका से, बट वो लेट है, बट मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी उनको। YouTube में आ जाएगा मोनिशा हाँ जी ये पूरा, हाँ, तो she बट can, but we will मैं, take another session. हाँ, We will मेरे को definitely. कई और बड़े लोग हैं जिनको जरूरत है इस चीज की बहुत ज्यादा। ये पकड़ पकड़ के लेके आके 4 आए थे, सुनो 3 भाग, आलू. 5 आए थे, 3 भाग गए, पर बहुत सुन के गए हैं। नहीं, But जरूरत है सच में। देखो मेरे को भी तो मिला था, तो मेरे को रास्ता मिल गया ना इसी सेशन में ही, तो बाई चांस मुझे ये लिंक दिखा। आप तो कब से कर रहे हो, तो मेरे को जब फायदा मिला, तो मेरे को, मेरी नेचर में है कि मुझे मिला तो किसी और को क्यों नहीं। तो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक छोटा yes, सा yes, सेशन और Sure, दे दो। sure, of sure. course, Thank of you. course. थैंक यू सो मच, And थैंक यू, गॉड you ब्लेस। are leading by example. आपको देख के ही लोग करेंगे, आप जो कर रहे हो ना उसी चीज को देख के लोग करेंगे 100%. कोई डाउट ही नहीं है, because you are changing, people will change because you are changing. ठीक है. Awesome, guys. Thank you, everybody. It was great pleasure. Inderjeet ji has left, but we need to thank him a lot for asking such beautiful questions. We hope sabhi ko आपको थोड़ा like you got that whole picture, because he asked very scientific questions. It is something that we all learn at nutrition, है ना. तो thank you so much आपका कीमती समय हमको देने के लिए, दीदी. बस अभी थैंक यू थोड़ी सी सो देर मच। में है ना, आपके पास हमारे YouTube चैनल का लिंक आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो भी चीजें मिस हुई हैं, मिस कुछ भी नहीं हुआ, एवरी डे यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कम्प्लीटली योर प्लेटफॉर्म। आप यहाँ पर आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बहुत आराम से, प्यार से। हम लोग, मैं सौम्या, यहाँ पर कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और ऑलवेज वी आर रेडी टू whatever we have to give away. This is our nature and this is एब्सोल्युटली योर ट्राइब, आपका अपनी जगह है। प्लीज आइए यहाँ पर और अपना कीमती समय हमारे साथ, जब हम लोग एक साथ स्पेयर करेंगे ना, तो आपसे कुछ हम सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। तो इसी तरह से सीखने सिखाने का दौर चलता रहेगा अगले फ्राइडे को भी, और अगले फ्राइडे को फिर हम लोग 6 PM मिल रहे हैं, और एक वंडरफुल टॉपिक के साथ। मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी रिलेटेड टू फेस्टिवल ओनली, एज पर मोनिशा जी सजेशन। We'll go with that definitely. And thank you so much to each and every beautiful soul. Thank you to our lovely, lovely Tara, who is there with us all the time and creating all the wonderful creatives for us. And everyone, Mamta, Namrata, Monisha ji, Poonam ji, Satvinder, Sujata ji, everyone, thank you so much from the bottom of our heart. May ये God देखो bless you with lots of love and happiness. छोटी बच्ची आई है दीदी, इधर देखो, इधर कितनी छोटी. छोटी बच्ची. तारा तारा. Okay. Yeah, Tara is here. Yeah, thank you Thank you so everyone. much, guys. Thank you so much. Love you all. Have a lovely, great weekend. Celebrate it with love.
Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sam. Thank you.